Today, the old financial order is fracturing. Trust is expensive. Oversight has turned into overreach. Privacy is vanishing. And the sovereignty of real economies has long been systemically stripped away. But on the blockchain, a new possibility is taking root. It is driven by consensus, forged by protocol, and carried by civilization. We call it the Origin Digital Civilization Trilogy. Origin, Awakening, Eternity. From the first spark to sovereign awakening to protocol eternity, Origin is the path toward digital self-sovereignty for humankind. In a world where everything is programmable, Origin sparked the first institutional fire. The launch of LGNS bond incentives drew participants into a chain-based economic loop, embedding incentive mechanisms and supply-demand logic into protocol code. Lines of code evolved into an early form of economic order. This was the genesis of the crypto world, a foundational layer of civilization forged by a network of believers. The awakening of civilization is not conquest, it is awareness. Once the incentive flywheel turned and the economic core stabilized, Origin entered its second chapter, Awakening. Here, sovereignty rises and privacy reclaims its place. Users are no longer passive participants. They become the authors of their own assets, identities, and data destinies. The A-stable currency launches, anchoring value beyond the US dollar. The A-Pay system goes live, enabling borderless, permissionless, unfreezable anonymous payments. LGNS bonds continue to fuel the economy in a closed, sustainable cycle. DAO governance evolves into the signer mechanism, replacing vote thresholds with protocol participation rights. This is the true entrance to the ecosystem. It's a time of application rollout, identity awakening, and sovereign reconstruction. We are no longer users. We are signers of the system, builders of consensus. When the ecosystem begins to self-operate, when the protocol gains evolutionary capacity, Origin enters the third chapter, Eternity. This is no longer about growth curves or user counts. It is about sustained coherence, intelligent interaction, and a living, breathing digital civilization. Real-world assets, RWA, are brought on-chain, bridging the arteries of value between the physical and digital worlds. AI and ZK technologies forge a smart, privacy-preserving society. Autonomous metaverses and sovereign identity systems give rise to civilization islands. A protocol world with infinite potential begins to bloom. From the first spark to today's privacy awakening and toward a future of self-evolving digital order, Origin is not just a financial protocol. It is a self-evolving system of on-chain civilization. We now stand in Phase 2, Awakening. This is not merely ecosystem expansion. It is a collective reawakening of sovereign awareness. Detrusting, decentralizing, de-dollarizing. These are not slogans. They are systemic necessities. Origin does more than change how we pay. It awakens a generation's imagination and commitment to digital sovereignty. From ignition to awakening to eternity, this is the trilogy we forged together. This is also the core mission of Origin. To replace authority with contracts, to rebuild order with consensus, and to carry the unfinished dream of human liberty into the age of chain-based civilization. Protocols may evolve, but civilizations endure, and the river of consensus flows ever forward. Origin, the protocol of digital civilization.
तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। घर की जिम में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और घर की जिम के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हम जितने भी नए साथी हैं, विशेषकर उनका विशेष आभार प्रकट करते हैं, जो इस जबरदस्त प्रोजेक्ट जिसे हम ओरिजिन अवेक के नाम से जानते हैं, वो सीखने और समझने के लिए प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। और आज का दिन बहुत शानदार और जानदार है, क्योंकि आज टेक्निकल सेशन का दिन है और बहुत सी बातों को सीखना और समझने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और आज के सेशन की जिम्मेदारी है श्री जितेंद्र सिंह चौहान साहब की। जितेंद्र भाई हमारे भोपाल से हैं, झीलों की नगरी भोपाल से। बहुत ही जानदार, शानदार और एक ज़बरदस्त लीडर, जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, हमारे बीच अभी 350 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। तो मैं आप सभी साथियों को ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आमंत्रित करते हैं आज के हमारे साथी श्री जितेंद्र सिंह चौहान साहब को। चौहान जी, आप आए और आज के सेशन की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू अशोक जोशी सर। एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय सिया राम। और यहाँ बने सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और थैंक यू अशोक सर, जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं आज के टेक्निकल सेशन में, और आपको टेक्निकल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं लगभग 394 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, लगभग 400 हो चुके हैं। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और V1 बनना आसान कैसे होता है और कैसे आप लोगों को काम करना है, क्यों इस रेट पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं आने वाले लोगों को। ये बहुत सारे पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं। और साथ में कैसे आप नए लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या आपको दिखाना है, कैसे आपको काम करना है, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और मजे की बात तो ये रहेगी कि आपको सीखने के साथ साथ बहुत मजा भी आने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार उन सब लोगों को कॉल कर लीजिए जिन लोगों को आप इस सेशन को अटेंड करवाना चाहते हैं। तब तक मैं अपने सेटअप को पूरा सम कर लेता हूं। तो सभी लोग एक एक कॉल करके सिर्फ इतना सा बोलिए कि जूम पे आ जाओ, बस इतना एक कॉल करिए। ये मात्र 2 सेकंड का रिंग जाएगा, 2 सेकंड की कॉलिंग होगी, और 5 सेकंड में आप वापस सिस्टम के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो जल्दी से कॉल करिए सब लोग अपने अपने, सभी एक एक साथियों को, जो भी आपके रैंडमली नंबर आता है, जो आपके साथ ज्वाइन है ऑलरेडी, और सिर्फ ज्वाइन पर्सन को ही आप यहाँ पर कॉल करिए। देखिए, आप लोगों को इसका बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपका एक व्यक्ति भी आया तो उसको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। चलिए, मैं अपना शेयर स्क्रीन चालू करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर किया। 1 मिनट। इंटायर स्क्रीन नहीं हुआ था। शेयर स्क्रीन। ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा सर, स्क्रीन आ रहा है, ये वाला मेरा वॉलेट आ रहा है, हाँ सर, क्लियर है। ये वाला। अभी इसको बताइएगा, अगर मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, और अगर ये ओपन हो जाता है तो। हम्म मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी कभी बिटगेट ये शो नहीं करता है, तो अभी ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस समय पे। ये शो कर रहा है सर। कर रहा है सर। क्लियर। चलिए, थैंक यू पारा सर जी। तो चलिए दोस्तों, अब आज के मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं, और बात करते हैं पिछले कई दिनों से लोग जिस रेट को लेके परेशान हैं, आज उस रेट का कंफ्यूजन दूर करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो पहली चीज तो सब लोग यहाँ पर इसको इसको एक बार सीख लीजिए, ये एक सीखने का मौका है। तो लोगों को जनरली ये लगता है कि अब हमारा एलजीएनएस टॉप पे नहीं रहा,
ये लोगों को बहुत लगता है। तो दोस्तों ये जिस प्रकार से हर चीज अपडेट होती है, तो इसने भी अपने आप को अपडेट किया। किसने किया अपडेट? हमारे डेक्स स्कैनर ने। इसको डेक्स स्कैनर को जब भी आप ओपन करते हैं, 1 मिनट, जब भी आप डेक्स स्कैनर को ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पे इसने ट्रेडिंग के नाम पे कर दिया कि 6 घंटे में क्या ट्रेडिंग हुई है और ऑल ब्लॉकचेन की। तो हमें अगर देखना है तो यहाँ पर ये टॉप का फंक्शन नहीं है। टॉप के बाद आता है न्यू, जितने भी न्यू करेंसीज आती है, और फिर आता है टॉप। यहाँ पर आप देखिए, हमेशा टॉप पे क्लिक कीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है टॉप। टॉप के बाद यहाँ पे है ऑल ब्लॉकचेन। ऑल ब्लॉकचेन कितनी होती है दोस्तों? ऑल ब्लॉकचेन फिर से हम आपको बता दें कि ये सारी ब्लॉकचेन है, और ये सारी लीगल ब्लॉकचेन है, और ये 100 से भी ज्यादा ब्लॉकचेन है। इनमें से आपको किस करेंसी के ऊपर, किन कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर कौन सी करेंसी देखना है, तो हम किस पे काम करते हैं जनरली? हम काम करते हैं पॉलीगॉन के ऊपर। तो हम इसको पॉलीगॉन को क्लिक करेंगे। अब पॉलीगॉन पे जितनी भी करेंसीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग हम जब सीधा नीचे जाते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं लगभग 161 पेजेस इसके अंदर है। और इतनी सारी करेंसीज में हम देखिएगा, अब टॉप की अगर बात करें तो हम टॉप पे ही हैं, क्योंकि टॉप के वॉल्यूम को क्लिक करोगे, टॉप के वॉल्यूम में हम ही आते हैं। यानी कि जिस दिन से एलजीएनएस आया उस दिन से हम टॉप पे बने हुए हैं। टॉप पे होने के रीजन बताते हैं। देखिए, फिलहाल में आपने इस रेट को जो है, कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हमने इसको 84 हाईएस्ट रेट देखा, लोएस्ट रेट हमने 1.41 देख रहे हैं आज की, क्योंकि यही लोएस्ट रेट है। तो इसमें लोगों को, कई सारे लोगों को, आज जब नए व्यक्ति आपके सामने जब ज्वाइन कराने जाते हैं तो वो लोग एक सवाल आपके सामने करते हैं कि उस समय तो ये 84 का रेट था, और जब कोई व्यक्ति आया होगा तो काफी लॉस हुआ होगा। डेफिनेटली ऐसा आपके सामने बोला जाता होगा। आज इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, इसको पहले ले जाते हैं इस साइड ही, ताकि इधर इसको कंफ्यूजन ना हो। तो पहला अपन इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद लोग कहते हैं कि हमने 84 या 80 के रेट में जो लोग आए होंगे, ये आप में से तो एक भी व्यक्ति नहीं आया 80 के रेट में। कुछ जो बहुत पुराने हैं जिन्होंने 80 के रेट देखे हैं, ये बात है, जब अखिलेश शर्मा सर जब ज्वाइन हुए थे उसके पहले आया था ये रेट 80 का। और इसकी बात करते हैं 2024 में अप्रैल और मई में, जब सिस्टम स्टार्ट ही हुआ था, तब से बाइंग बाइंग होती थी, और सिर्फ बाइंग बाइंग होने से एक तरफा मार्केट हुआ तो ये रेट 84 तक गया। लेकिन आप लोगों को एक जानकारी नहीं है कि 80 के रेट पे अगर किसी ने 100 एलजीएनएस बाई किए तो उसके $8,000 लगते थे। मैं 100 रुपए से डॉलर को काउंटिंग कर रहा हूँ। $8,000 रखते थे, उससे 100 क्वाइन आते थे। अब व्यक्ति कहेगा कि 8,000, और आज 100 क्वाइन लाने के लिए हमें लगते हैं $140, $141 समथिंग। तो क्या वो व्यक्ति लॉस में गया? ये लोगों का सवाल आता है। तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। कारण कि उस समय हमारा जो रिटर्न था, 360 दिन का जो रिटर्न था, वो था 80 गुना। यानी कि जो 100 एलजीएनएस थे, उसके 100 एलजीएनएस के इनटू कर दो 80 गुना, तो 8,000 एलजीएनएस बनते थे 1 ईयर में। ये बात कर रहा हूं मैं अप्रैल मई 2024 से अप्रैल मई 2025 तक। अब जिसके 100 एलजीएनएस के 80,000 एलजीएनएस बने, तो 80,000 एलजीएनएस, सॉरी 8,000 एलजीएनएस बने, 8,000 एलजीएनएस। और जब दूसरे साल की बात करें 2025 अप्रैल और मई, उस समय इसका रेट लगभग लगभग 16, 17, 18, $20 के आसपास पहुंचा। अब सोचिए कि अगर $20 भी रेट था, क्योंकि उस समय के बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने ये रेट देखा 15 और 20 के बीच में, मैं 20 पकड़ के चलता हूँ, तो $8,000 के कितने बने? अब आप देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, $1,60,000 रेट। 80 के रेट पे परचेसिंग की, 100 क्वाइन, एक साल वेट किया और $20 पे आया। 75 गुना माइनस किया है मैंने, 75% डाउन मार्केट की बात कर रहा हूं। उसके बाद भी 8,000 क्वाइन का इतना बना। अभी ये राउंड फिगर हो सकता है। अब बात करते हैं लगभग
अगर इसको आप 15 भी माने कि 15 का रेट था लास्ट ईयर अप्रैल में, अगर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं लास्ट ईयर अप्रैल में तो भी $1,20,000 बने। अब बताइए कहाँ किसको लॉस हुआ? मैंने 80% डाउन कर दिया, 80% माइनस कर दिया। तो लॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा एपीवाई रिटर्न ज्यादा देता था। अब बात करते हैं 2025 अप्रैल मई से 2026 अप्रैल मई की। अब 2026 अप्रैल मई में इसका रेट लगभग $6 था। अब यहाँ पर अपन इसी समय बात करें कि किसी ने $100 परचेज किए 15 के रेट पे, ये बड़ा कंफ्यूजन है और ये बताया कीजिए लोगों को। तो सामने वाले के $1,500 लगे, लगभग 1,500। लेकिन हमारा जो रिटर्न था वो 30 गुना था, 30 टाइम था। तो 100 एलजीएनएस का 30 टाइम 3,000 एलजीएनएस बने। अब 2024 और 2025 26 सॉरी 2025 2026 एक साल में उनके 3,000 एलजीएनएस बने और रेट आ गया $6 का। तो भी $1,500 से 1,500 ढाई से 18,000 बने। अब बताइए किसको लॉस हुआ? किसी को भी नहीं। मैं लास्ट 2025 से 2026 की बात कर रहा हूं, अप्रैल मई से, मार्च अप्रैल मई। आप इस चीज को समझ लीजिए, तीनों महीने में ये रेट आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे मिनिमम रेट 6-7 का चल रहा था। अब बात करते हैं कि क्या हम अगले एक साल में, अब आज से हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आज इसका रेट 1.41 है और यदि आपको 100 एलजीएनएस लेने हैं तो आपको $141 लगेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 141 और आपको मिलेंगे 100 एलजीएनएस। अब अगर आप नॉर्मल स्टेक में भी रखते हैं या अगर आप एक साल के लिए फिक्स करते हैं, हम साल से नीचे की बात नहीं करेंगे। अगर कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल लाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में उस व्यक्ति को कुछ बहुत बड़ा अर्निंग नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता है। ये सिस्टम चलता है लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पर अगर आप 360 दिन में रख देते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम और इंटरेस्ट दोनों मिला के, और हम लोग ये कैलकुलेशन देख भी सकते हैं, दोनों मिला के लगभग आपका 20 से 25 गुना होगा। मैं मिनिमम 20 पर करता हूं तो 2,000 इंजीनियर बनेंगे 1 ईयर में। 2,000 इंजीनियर बनने तो इससे भी ज्यादा है, लगभग 3,000 के आसपास बनेंगे, पर मैं 2,000 की बात करता हूं। और रेट अगर मैं 1.41 का ही पकड़ता हूं तो आपके $141 $2,820 बन जाएंगे। कितना गुना हुआ? 20 गुना हुआ आपका फंड। यानी कि इस सिस्टम में आने वाला कोई भी व्यक्ति, सिंगल 1% व्यक्ति भी इस सिस्टम में माइनस में नहीं है। ये कैलकुलेशंस आपको दिखाने थे कि आप इस चीज को यहां से ऑब्जर्व करिए। अब बात करते हैं, अगर आपका रेट ज्यादा होता है तो एलजीएनएस कम आते हैं, आज रेट कम है तो एलजीएनएस ज्यादा आते हैं। हमारा सिस्टम रेट के ऊपर बात नहीं करता। जो ये रेट चल रहा है ना, आप लोग जिस रेट को देखते हैं, ये जो रेट चल रहा है, इस रेट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एलजीएनएस रिटर्न में एलजीएनएस देता है। हमारा जो सिस्टम है वो रिटर्न में एलजीएनएस देता है। वॉल्यूम की बात करें तो आप सिर्फ यहां पर देखिए, पिछले 24 घंटे में 11.9 मिलियन का वॉल्यूम हुआ, जिसमें 5.9 मिलियन की बाइंग हुई और 6 मिलियन की सेलिंग हुई, यानी काउंटर है लगभग बराबर। तो परसेंटेज में हल्का फुल्का 0.021% मात्र माइनस हुआ। और ये लास्ट 24 घंटे का है, यानी कि कल 9:30 से अभी 9:30 का। दोस्तों, किन किन फिगरों पे आपको ध्यान रखना है? यहाँ पे जैसे 2 साल 4 महीने और 29 दिन, यानी कि हम चले गए हैं 2 साल 5 महीने इस सिस्टम ने निकाल दिया। और वर्ल्ड में इस प्रकार के रिटर्न देने वाले सिस्टम ओनली 5 महीने भी नहीं चलते हैं, जबकि हमारे आगे 2 साल लगा हुआ है। हमारे अगर महीनों की बात करें तो 29 महीने हो चुके हैं हमें, 29 मंथ्स, क्योंकि 2 साल में 24 महीने और 5 महीने, 29 मंथ से हम लोग रन कर रहे हैं सिस्टम में। और मजे की बात क्या है कि लोग किस चीज से परेशान होते थे? परेशान होते थे कि कंपनी बंद ना हो जाए। वो कंपनियां होती है ना एक्चुअली में, ये तो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, या कम्युनिटी काम कर रही है। लेकिन
परेशान होते थे कि कंपनी बंद ना हो जाए, और वही होता था। और दूसरी चीज विड्रोवल बंद ना हो जाए, वही होता था। आपको ये दोनों चीज देखने को मिली नहीं, हमारे यूआरएल कभी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ पे स्टेक अनस्टेक प्रोग्राम है, जिसको आप विड्रावल बोलते हैं, क्योंकि सबके मुंह पे चढ़ चुका है विड्रावल। तो ठीक है, आप उसे विड्रावल बोल सकते हैं, अनस्टेक करते हैं। दूसरी मजे की बात अगर आप देखेंगे ना, तो दोस्तों, आप जो एलजीएनएस परचेस करते हैं वो आपके एड्रेस से, आप जो एड्रेस जनरेट करते हैं उस एड्रेस के साथ अटैच होते हैं। आपके जितने एलजीएनएस है वो ब्लॉकचेन के अंदर है। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा, आज किसी ने मैसेज में लिखा, देखिए, और मैं दिखा भी देता हूँ। व्हाट्सएप पे किसी ने तो मैसेज आज रेट के ऊपर मैसेज व्हाट्सएप किया। ये देखिए, किसी ने यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे, किसी ने रेट लिखा है पॉलीगॉन 1.4122, और अनुविस का रेट है 2.25। चलिए इसके ही ऊपर आज डिस्कस करते हैं। और ये किसी ने लिखा था, तो आज इसी को आप लोगों को क्लियर करता हूं कि आप लोगों को अगर ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ 1.4122 पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो 2.25 जो है, ये मैकेनिज्म है। यहाँ आपको इस रेट पे ना तो खरीदी करनी होती है ना बिक्री करनी होती है, यानी कि ना तो खरीदना होता है ना सेल करना होता है, आपको करना है 1.4122, याद रखिएगा। और यहाँ पे 2.2550 है। अब इसका कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को बड़े बखूबी समझ में आएगा, मजा आएगा। और बल्कि अगर आपको आज 100 एलजीएनएस परचेस करना है तो आपको 1.41 के रेट से परचेस करेंगे, $141 आपके लगेंगे। चलिए, अब इसको आप उठा के लगा दीजिए किस पे। इसको आपको लगाना है यहाँ पर, जब आप आईडी खोलते हैं, और आपको पॉलीगॉन से ही खरीदना है, पॉलीगॉन के ही एलजीएनएस लेना है। अगर पॉलीगॉन के एलजीएनएस आप लेते हैं तो फिर आपको जाना है यहाँ पर मिंट के ऑप्शन में, याद रखिएगा, ये मिंट के ऑप्शन में आप गए। अब मिंट के ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, 600 दिन और 360 दिन, दोनों के रिटर्न्स अलग अलग हैं, याद रखिएगा। 360 दिन में इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दोनों मिला के 1% के आसपास पहुंच जाता है। 1% से थोड़ा कम रहता है, लेकिन मंथ के एंड में जब देखोगे तो 1% से ऊपर ही कहानी इसकी चली जाती है। लेकिन 600 डेज में देखेंगे तो फर्स्ट डे से ही आपको 1% से ज्यादा मिलने लग जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि अगर आप यहाँ पर 360 दिन में डालते हैं तो 360 दिन में आपको एनएफटी मिलती है, जब भी आपके 10,000 एलजीएनएस हो जाते हैं। जब भी आपके 10,000 एलजीएनएस हो जाते हैं आपको एनएफटी मिलती है 10,000 एलजीएनएस पे। चलिए प्रोसेस करते हैं, तो और क्या हमें लाभ हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम डालते हैं तो पहला बेनिफिट तो हमें एनएफटी का ही मिल जाता है, यानी कि 10,000 एलजीएनएस जिस दिन भी आपके इकट्ठे होंगे उस दिन आपको यहाँ पर एनएफटी मिलेगा। दूसरा चीज, यहाँ पर हम कुछ चीजें जो आती है वो ऑफर्स के रूप में आती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले आप लोगों को यहाँ पर 2% GLGNS एज ए रिवार्ड आपको मिलता है, जो फिलहाल में इस समय इस ऑफर को नहीं देखा जा रहा है। जो चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, याद रखिए, वो सिर्फ एक ऑफर है, और ऑफर हमेशा सीमित समय के लिए होता है। ऑफर के साथ वर्ड लिखा होता है सीमित समय। आप हमेशा ऑफर जो शब्द सुनते हैं दीपावली के आसपास सुनते हैं, ईद के आसपास सुनते हैं, 31st के आसपास सुनते हैं, 31 साल एंड होने पे। तो यहाँ पर जो है GLGNS का एक कोटा होता है, वो कोटा पूरा हुआ। अब वो आपको यहाँ पर एनएफटी दे रहे हैं, एनएफटी का ऑफर इसमें चालू है। अगर आप 600 डेज में जाते हैं तो रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। अब रिटर्न ज्यादा मिलते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम वहां पर ज्यादा दी जाती है आपको। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर आप 100 एलजीएनएस डाल जाते हैं, लाइक दिस, मैं एलजीएनएस से बात कर रहा हूँ, अगर आप डाई से डालते हैं, आप डाई या एलजीएनएस किसी से जा सकते हैं, तो 100 एलजीएनएस डालने के बाद इन इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दोनों मिला के आप लोगों को, और रिटर्न किस पे आएगा? आपका रिटर्न आएगा आपके पॉलीगॉन के रेट से, सॉरी, अनुबीस के रेट से। अनुबीस का रेट 2.25। अब चलिए अनुबीस पे चलते हैं। और यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों का
कि साहब हमारा बड़ा डिडक्शन होता है। आज आपको डिडक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, एक बार और बता दीजिए कि मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सर आप लोगों को? कोई भी साथी है हमारे? को और साथियों से निवेदन है कि बता दीजिए स्क्रीन शो हो रहा है क्या? हाँ सर, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके सर, ओके, थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है कि यदि आपने 100 LGNS अर्न किया, देखिएगा, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। अगर आपने 100 LGNS अर्न किया, तो मैंने क्या वर्ड बोला था आपको? खरीदी और बिक्री एक ही रेट पे करनी है। पहले अपन डैशबोर्ड का रेट देख लेते हैं, जो किसी ने साथी ने भेजा था वही रेट है। यानी कि यहाँ पर इस समय चल रहा है 1.40 और यहाँ पर चल रहा है 2.23.96। याद रखिएगा इस रेट को। और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं। और कोई भी व्यक्ति ये रेट मुझे बताना, अच्छा, पूरी बात करेंगे इसमें रेट के ऊपर, ये 4087 और यहाँ पर 2.2396। अब देखिएगा आपको कहाँ नुकसान और कहाँ फायदा हो रहा है। अब आपने यहाँ पर अर्निंग किया। अर्निंग कहाँ से करते हैं हम लोग? अर्निंग जनरली करते हैं, या तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की अर्निंग करते हैं, या तो आपको कम्युनिटी में डाउ रिवार्ड आता है, या फिर आपको आता है इंसेंटिव, जो टरबाइन के रूप में आपको लेना पड़ता है। ये आता है स्पाइडर वेव रिवार्ड में। जब हम इसको चालू करते हैं स्पाइडर वेव रिवार्ड को, तो यहाँ पर आपको दिखता है अर्निंग। ये स्पाइडर वेव रिवार्ड आता है। मैंने ये आईडी जो है दूसरी ओपन करके रखी है, इसलिए यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा। तो ये स्पाइडर वेव रिवार्ड आपको आता है जनरली। और कौन सी अर्निंग आती है? और अर्निंग आती है लॉन्ग टर्म में, जिसको आपने स्टेक किया, या तो 360 दिन में किया या फिर 600 दिन में किया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो तो जाती है टरबाइन में, और जो इंटरेस्ट आता है वो आपका सीधा स्टेक में चला जाता है, जहां पे आप स्टेक कर सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं। अब लोग बड़े परेशान हैं कि सर अगर हम अपने एलजीएनएस को स्वेप करेंगे, एलजीएनएस को, अब आज आपको ये चीज समझनी होगी कि खरीदी किस रेट पे की हमने। वही जो करंट रेट चल रहा है, वो भी पॉलीगॉन का रेट चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेट चल रहा है 2.2395। याद रखिएगा ये रेट 2.2395, और पॉलीगॉन का रेट तो आपको बता ही दिया। अब आपने यदि खरीदी की है 1.4089, तो $140 आपके $141 लगे। ठीक है, अगर खरीदी इस रेट पे की है तो सेलिंग भी इसी रेट पे होनी चाहिए हमारा। चलिए बात करते हैं सेलिंग की। अगर 100 LGNS को हम लोग सेल करते हैं, तो 100 LGNS को जब सेल करेंगे, तो 100 LGNS का हमारा बनेगा 1.441 ही कर लेते हैं, तो आपको 141। अब इसमें 5% का डिडक्शन लगता है। 5% का डिडक्शन बोले तो 7.05 आपका डिडक्शन लगेगा। यानी कि आपके पास जो आएंगे जितेन भाई, माइनस। आपकी स्क्रीन बड़ी है, इसको थोड़ा छोटा करो, वो दिख नहीं रहा ऊपर का। नहीं, एक्चुअली में नहीं मेरे तो नहीं, कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर केवल नंबर दिख रहे हैं, अच्छा, आपके परसेंटेज नहीं दिख रहे। ओके ओके ओके, चलिए। हम्म। ये पूरा नहीं दिख रहा है इस प्रकार से। ऊपर का, हाँ, ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा है, अब दिखा। चलिए, तो आपके पास मिलना कितना है? $134। दोस्तों मैंने क्या कहा? 100 LG ने सेल आउट किए 1.41 के रेट से किए, 141 में 7 माइनस कर देंगे तो आपको $134 मिलने चाहिए। यही आपका अधिकार है, क्योंकि खरीदी भी इस रेट पे हुई और सेलिंग भी इसी रेट पे। अब चूंकि आपने तो अर्निंग किया किस पे? पॉलीगॉन के रेट पे। तो आप बड़े कंफ्यूज हैं कि पॉलीगॉन के रेट पे अगर हम 100 LGNS सेल आउट करते हैं, 100 LGNS, तो आप क्या कहते हो? मुझे 223 क्यों मिलना चाहिए? ये तो मैकेनिज्म वाला रेट है। ये आपको अर्निंग बढ़ा के देता है, सिस्टम को बना के देता है। लेकिन आप कहते हो मुझे 223 मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए साहब? आपने पैसा लगाया क्या? आपने लगाया 1.141 के रेट से, तो रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से आना चाहिए। अब पॉलीगॉन के रेट से ही सेलिंग होगी, देखिएगा। अब यहाँ पे आप डिडक्शन देख रहे हैं, कितना डिडक्शन है? 40%। बड़ा दिमाग खराब होता है, लेकिन 40% 1.41 के रेट पे नहीं है, 40% 2.2393 के रेट पे है। ये 40% डिडक्शन इस रेट पे है।
चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, ये एक बॉक्स खाली बना रहता है, इस बॉक्स में आप लिखिए यहाँ पर 40%, ये लिख दिया मैंने 40%। अब आपको डॉलर कितने मिलेंगे ये देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। 133.96, 133.96 आपको दिख रहा है। और अब ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका अधिकार 133 यानी कि 134, और वहां पे भी एक्यूरेट फिगर ही आ रहा है। मैंने कैलकुलेट, अगर मैं कैलकुलेट $100 से, फिर से समझिएगा, $100 से करता हूं और 1.4089, तो $140। इसका मैं 5% डिडक्शन मारता हूं तो 7.0504, ये माइनस किया 7.04। ये देखिएगा 133.85 आपको पॉलीगॉन के रेट के बेचने पर 133.85 आ रहा है, और अनुविश का जब आप सेल आउट कर रहे हैं तो अनुविश पे 133.95। कहाँ डिफरेंस हुआ, कहाँ कोई परेशानी है? क्यों आप इस चीज को दिमाग में रखते हैं जब आपने इस रेट पे खरीदी की नहीं है? और तो इसी रेट पे सेलिंग करेंगे ना। आपने अगर इस रेट पे खरीदी की होती तो आप ये बात सोचते कि हाँ मैंने इस रेट पे खरीदी की है तो मैं इसी रेट पे बेचूंगा, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता। जब सिस्टम कह रहा है कि आप खरीदी करो पॉलीगॉन के रेट से, सेलिंग करो पॉलीगॉन के रेट से, कहाँ किसी को नुकसान हुआ? $1 का भी अंतर नहीं आ रहा है। और ये रेट जो आप देखते हैं कि सिस्टम कभी भी कोई भी रेट कर देता, सिस्टम कोई रेट नहीं कर रहा है, सिस्टम मैकेनिज्म बना रहा है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें दोनों के रेट सेम हो जाए। बार बार आप लोग सुनते हैं ना कि दोनों के रेट सेम हो जाए, दोनों के रेट सेम हो जाए। वो दोनों के रेट सेम यहां आके होते हैं, खरीदी और बिक्री का रेट। यानी कि आप चाहे पॉलीगॉन के एलजीएनएस सेल करो, चाहे आप अनुविश के एलजीएनएस सेल करो, आपके रिटर्न सेम आना चाहिए। तो परसेंटेज उस हिसाब से ये 40% दिखता है, जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 40% उस रेट के अकॉर्डिंग दिखता है। तो आप लोग इस 40% को यूं मत देखो, इस रेट के ऊपर लगाता है सिस्टम। ये जो 40% जो है ना, इस रेट के ऊपर लगाता है, रिटर्न आपको इस रेट से आ रहे हैं। अनुबीज जो दे रहा है ना आपको एक्स्ट्रा इनकम या इनकम। तो चलिए, आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा, आई थिंक, कि आप लोग ये डिडक्शन में कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं है। दूसरी बात करते हैं, जिनको स्पाइडर वेब रिवार्ड और डाउ रिवार्ड आता है, जिनको भी स्पाइडर वेब रिवार्ड और डाउ रिवार्ड आता है दोस्तों, जो पॉलीगॉन पे आता था उससे सिस्टम ने 1.5 गुना दिया। यानी कि जिसको 100 एलजीएनएस आते थे उसको सिस्टम ने 150 एलजीएनएस देना चालू किया 24 घंटे में। पहले 3 बार आता था, अब 2 बार आता है, लेकिन 1.5 गुना आता है पॉलीगॉन में। और ये जिन लोगों ने भी महसूस किया होगा उन लोगों को ये पता होगा कि डाउ रिवार्ड 1.5 गुना आया है उस समय पे, अगर वो याद कर ले। और अगर सिस्टम कहता है कि इस रेट पे आके आपको करना है, तो एक्चुअली में आपको जो भी एलजीएनएस आते हैं ना, जैसे हम अभी साइड के ऊपर तो हम वो स्पाइडर वेब रिवार्ड या इस प्रकार का कोई रिटर्न मुझे मिलता नहीं है, लेकिन टरबाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो इस पे क्लिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पे कोई टरबाइन अभी तक आया नहीं है। कुछ ना कुछ पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है। तो सिस्टम यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर अगर आप टरबाइन करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम आपसे जो रेट है उसका 5% ज्यादा लेता है। कितना रेट है? 2.2395 ये रेट है। अब इसका 5% सिस्टम ने, यानी कि 0.111, इसको जोड़ देते हैं, प्लस 0.111, यानी कि आपका जब टरबाइन होगा तो इस रेट से होगा। यानी कि अभी रेट करंट चल रहा है 0.2395, और आप जब टरबाइन के लिए डॉलर लाएंगे तो आपको 2.35 के रेट से, यानी कि इसमें अगर मैं इंटू कर दूं 100 एलजीएनएस तो आपको 235 डाई चाहिएंगे। 235 डाई चाहिएंगे तो आपके 100 एलजीएनएस टरबाइन होंगे। और 235 डाई से जब 100 एलजीएनएस टरबाइन होंगे तो इनको जब आप सेल आउट करने जाओगे तो बिकेंगे पॉलीगॉन के रेट से। याद रखिएगा। तो जो एक्स्ट्रा जो सिस्टम ने फंड लिया है, इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लिया है। और दूसरी बात, आपको रिटर्न ज्यादा दे रहा है वहां पे।
अगर 600 दिन में जाते हैं तो 38 से 40% महीने का रिटर्न निकल के आता है। जब सिस्टम ज्यादा ले रहा है तो सिस्टम यहाँ पे डाई के रूप में आपसे मजबूती करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की तकलीफ क्या है आज तक, जैसे मैं 26 साल से एक तकलीफ में हूं कि बस एक ऐसी कंपनी मिल जाए, एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो सिस्टम कंपनी बंद ना हो और विड्रॉवल बंद ना हो किसी भी कीमत पे, और सिस्टम चलता रहे। यही हमारी तकलीफ थी। लेकिन 26 साल तो मैंने एमएलएम किया, लेकिन 26 साल में मैंने सैकड़ों कंपनियों को खुद ज्वाइन करके बंद होते हुए देखा, और लाखों कंपनियों को मेरी आंखों के सामने बंद होते हुए देखा। लाखों जिनमें मैंने काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने तो काम किया। और यहां पर बेटा हर एक सदस्य कितनी कंपनियों में पैसा लगा के कुछ ने कमाया, मैक्सिमम ने डुबाया, और जिसने कमाया उसने अगली कंपनी में डुबाया। बड़ी बात क्या करी कि इस कंपनी में कमाया तो अगली में डुबा दिया, और अगली में डुबाया तो उसकी अगली में कमा लिया, फिर अगली में डुबा दिया। अल्टीमेटली हम लोग जीरो पे रहे। उस मुकाबले में अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारा यूआरएल कभी बंद नहीं हुआ। हमारा जो डिपॉजिट है उसे निकालना, उसको डॉलर बनाना और हमारी करेंसी में कन्वर्ट करना, ये हमारे सिस्टम में कभी बंद नहीं हुआ। तो हमें खुशी किस बात की होनी चाहिए। अब तीसरी बात करें, आज जो हमारा रेट चल रहा है, इस रेट के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उतार चढ़ाव सब देके अल्टीमेटली फायदे में रहे, क्योंकि हम 1 साल से कम की बात नहीं करेंगे किसी से भी। अगर पुराने जो 1 साल टिके हैं, लगे हैं, जाहिर सी बात है कि बड़े रेट से अगर आधा रेट हुआ तो 4 महीने की जगह 8 महीने में डबल हो गया, फंड तो निकला ना। कंपनियां तो 8 महीने में भागी जाती है पूरा लेके। लेकिन अब जो नई कम्युनिटी आ रही है और जो पुराने लोग डटे हुए हैं, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे रुके हुए हैं, लेकिन जिन्होंने 360 दिन या 600 दिन में डाला वो तो मजबूरन रुके हुए हैं। लेकिन अब जो कम्युनिटी आ रही है और इस रेट के ऊपर जो काम करेगी, ये जो रेट है ना 1.40, अच्छा ये दोनों का मैनेज करने का तरीका मैंने बता दिया कि ये रेट ज्यादा क्यों है, ये रेट कम क्यों है, क्योंकि सारी खरीदी और बिक्री ऊपर के यानी पॉलीगॉन के रेट पे होती है। और ये मैकेनिज्म बनाया, इसके ऊपर चार्जेस इसलिए लगाए कि आपको ये रेट तो मिल ही जाए एटलीस्ट, क्यों खरीदी इस पे हो रही तो बिक्री भी इसी पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं खरीदी करने की। आज व्यक्ति को अगर 10,000 एलजीएनएस बाय करने हैं, 10,000 एलजीएनएस बाय करने हैं, तो 1.40 के रेट से बाय करेंगे तो $14,000 ही लग रहे हैं। $14,000 आज ना, जाहिर सी बात है 103 के रेट से मिल रहे हैं, यानी कि 14,42,000 रुपए में आप एक एनएफटी भी ले रहे हैं और आप 10,000 एलजीएनएस भी ले रहे हैं। एनएफटी के बेनिफिट अभी कुछ दिनों पहले देखे सबने, 26 एलजीएनएस सब लोगों को मिले टोटल ओवरऑल पर पर्सन, जिसमें मैंने एक अपने हिसाब से कैलकुलेशन निकाला था जिसमें 75,600 एनएफटी होल्डर थे, क्योंकि 20 लाख एलजीएनएस बने थे और 26 से मैंने जब भाग दिया तो वो 75,600 मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आए कि इतने एनएफटी होल्डर। और उसके बाद से आज लाख के ऊपर लोग एनएफटी होल्डर हो चुके हैं। एनएफटी एक एयर ड्रॉप है, याद रखिएगा। ये आप खरीद नहीं रहे हैं, ये आप रिवार्ड के रूप में पा रहे हैं, एयर ड्रॉप के रूप में पा रहे हैं। इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, जिसमें आपका फंड कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन यही 14,000 जो डॉलर आपके मैंने बताए हैं, लगभग ये $14,000 अगर आपने 360 दिन में डाले और एक दिन भी विड्रॉवल नहीं किया तो इंटू 20 कर दीजिए, $2,80,000 बनेंगे। अब मैंने यहां तक आपको बताया कि आप इतना अर्न करने वाले हैं। इस बीच में आप अपने 14,000 निकाल लीजिए, रिस्क फ्री हो जाइए। 3 से 4 महीने में आपके डबल हो जाते हैं, डिडक्शन करने के बावजूद भी आप वही 4 महीने के अंदर डबल कर लेंगे। आपके एलजीएनएस तो हो जाएंगे, लेकिन वो डिडक्शन भी तो लग रहा है साथ में। तो 3 महीने में ही आपके डबल हो जाएंगे, लेकिन 4 महीने में निकालेंगे तो डिडक्शन के साथ आपका डबल होगा और आपका फंड लिक्विड मनी में उतना फंड आपके पास आ जाएगा, यानी कि आप पूरा साल भर के लिए स्टेक नहीं कर रहे हैं। चलिए V1 बनने की बात करते हैं दोस्तों। V1, अब V1 बनने में एक सवाल जवाब हम थोड़ा सा करेंगे, जिसमें योगेश पाराशर सर का साथ लूंगा मैं। योगेश सर, आप हैं अवेलेबल? आपसे एक सवाल करना है और जवाब उसका पब्लिक को मिलेगा। सर चलिए सर, V1 बनने के लिए मुझे आज अगर V1 बनना है तो
कितना बिजनेस चाहिएगा मुझे तीनों लेग में? 50-50 $60। चलिए, आज का रेट क्या माने जिसमें अपन रोज डेली खरीदी कर रहे हैं? 1.4। हाँ, नहीं नहीं, मैं डॉलर का रेट बोल रहा हूँ। वन जीरो अच्छा, थ्री माने? 1.03। ठीक है, अब मुझे $50,000 चाहिए हम्म। और इसमें इंटू करता हूँ 103 का, तो मुझे जी, कितने रुपए का लगभग बिजनेस चाहिएगा 51,50,000। एक लेग में? हाँ। क्लियर? हाँ। इसमें इसमें मेरे एलजीएनएस कितने हो जाएंगे? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो डिवाइड कर देते हैं 1.4, तो मुझे 35,700 एलजीएनएस चाहिएंगे एक बिल्कुल लेग सर। में। यस। तो दूसरी में भी इतने ही चाहिए और तीसरी में भी इतने ही चाहिए। सेम। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को V1 बनना कितना आसान हो जाएगा कि अगर पूरा बिजनेस आप अनुबीस में डालते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस, अब $50,000, तो आपको $50,000 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी कि सिस्टम ने मांगे तो 50,000 है इस रेट से, और इन्हीं एलजीएनएस को उठा के आप डाल दीजिए पॉलीगॉन अनुबीस के ऊपर। तो अनुबीस के ऊपर आपको मात्र 23,500, अपन 23,700 कर लेते हैं, 23,700 एलजीएनएस। अभी करंट रेट क्या चल रहा है सर अनुबीस का? 2.2। 2.23, अभी तो चेक किया था। हम्म। 2.2 भी कर लेते हैं, 2.2, तो भी 52,000 हो रहे हैं हमारे पास इस समय करंट में। अब आप इस मैकेनिज्म को समझिएगा। यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने स्वेप के ऑप्शन पे। स्वेप के ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको पॉलीगॉन के एलजीएनएस खरीदने हैं। पॉलीगॉन के एलजीएनएस कितने खरीदने हैं आपको? यहाँ पर मैंने लिखा है आपका इस समय पे 23,700, पूरा लिख लेते हैं, 23,700 ही कर लेते हैं। तो आपके 52,875 हो गए, बल्कि मैं तो इसको 500 ही कर देता हूँ, 23,500 में आपका हो रहा है। आई थिंक तो 23,000 में हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। बिल्कुल, 23,000 एलजीएनएस आप काय के खरीद रहे हैं? पॉलीगॉन के। और आपका बिजनेस कितना हो गया? $51,000 का। 23,000 एलजीएनएस आप लीजिए, तो आपका और डाल दीजिए किस पे? अनुबीस पे 1 ईयर के लिए एक लेग में, तो आपका बिजनेस माना जाएगा $51,314। अब ये 23,000 एलजीएनएस आएंगे कितने रुपए के? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 23,000 एलजीएनएस ये लिखे मैंने, 23,000, और खरीद रहे हैं पॉलीगॉन के रेट से, तो 1.40, ये देखिए $32,200 में आप $50,000 का बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि अगर इस $32,200 को 103 के रेट से करें तो आपका 33,16,660 रुपए लग रहे हैं एक लेग में V1 बनने के लिए। हम लोग पुराने उसमें पॉलीगॉन के रेट से हमेशा आप जोड़ते आ रहे हैं कि 1.5 करोड़ का बिजनेस तीनों में 50-50 लाख रुपए लोग बोल देते हैं जनरली कि इतने रुपए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इसने एक बेनिफिट भी तो दिया आपको कि आप मात्र इतना फंड एक लेग में, इतना फंड दूसरी लेग में, इतना फंड तीसरी लेग में लगाइए, और इतने एलजीएनएस आपके पास, हाँ, लगभग इतने डॉलर के एलजीएनएस, यानी कि आपको 23,000 एलजीएनएस चाहिए। और 1 ईयर के लिए डालेंगे तो 1 ईयर तक आप V1 है, और 1 ईयर में वो 20 गुना वैसे ही होना है, तो आप ऑटोमेटिकली V2, V3, V4 बनेंगे। तो लोगों के दिमाग से थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बिठाइए। उन लोगों की पुरानी भ्रांतियां, और जो मार्केट में दूसरी कंपनियां वाले लोगों को एलजीएनएस के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। आज मार्केट में लाखों कंपनियां चल रही हैं और सारी की सारी एक नाम लेके चलती है, और वो नाम है एलजीएनएस। चाहे वो बुराई के रूप में एलजीएनएस ले, चाहे अच्छाई के रूप में है। एक मुझे बहुत अच्छा किस्सा याद आ रहा है, मैंने वो भगवान कृष्ण की एक बात सुनी थी, यूट्यूब पे ही सुनी थी, कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन? तो जवाब मिला कि सुदामा, क्योंकि सुदामा रात दिन कहते थे। तो भगवान कृष्ण ने एक बात बोली कि मेरा सबसे बड़ा भक्त तो कंस है।
क्योंकि सुदामा तो फिर भी कभी कभी नाम लेता है, वो तो सोते जागते एक ही नाम लेता है कि मेरा सबसे बड़ा भक्त वो हुआ जो सबसे ज्यादा मेरा नाम लेता है। वो तो कंस लेता था, क्योंकि वो जीरो जिस दिन से जन्म हुआ तब से वो सिर्फ भगवान कृष्ण को मारने की सोचता था कि कृष्ण कब मरे, कृष्ण कैसे करूं, क्या करूं। तो दोस्तों, सारी कंपनियां हमारा नाम लेके आगे बढ़ रही है, लेकिन आप लोग इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो योगेश सर, आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया बिल्कुल क्लियर सर। कि हम लोग खरीदी किस पे करते हैं? खरीदी करेंगे पॉलीगोन पे, और किस रेट पे? हम इस रेट के ऊपर कैलकुलेशन में जाएंगे। हम ये 0.40 के रेट पे खरीदी करेंगे और उसको लगा देंगे 1 साल के लिए ऑटोमेटिकली अनुबीज पे, और जब लगाएंगे तो हमारा $50,000 का बिजनेस काउंट होगा। तो बताइए, V1 बनना पहले आसान था कि अब आसान हुआ सर अनुबीज अब आने पर? अब आसान हो गया सर। अब आसान हो गए ना। यस। अब वी वन की इनकम जो आ रही है उसे आपको टरबाइन करना भी मैंने बताया। रेट, जब इनकम आएगी तो आपने जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे इनकम आना, आपको रिटर्न मिलना चाहिए। यस सर। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच योगेश सर। तो दोस्तों, V1 बनने के लिए आप लोग जितने जद्दोजहद, जितने प्रयास, जितने कोशिश आप कर रहे हैं, सारा का सारा बिजनेस आप पॉलीगोन के रेट पे खरीदिए, 360 दिन में लगाइए। अनुबीस पे ऑटोमेटिक चला जाता है, और जैसे ही अनुबीस पे वो जाता है, आप यहाँ पर V1 बन जाएंगे। मात्र 23,000 एलजीएनएस, और 23,000 एलजीएनएस की वैल्यू है लगभग $32,200। तो लगाना है $32,200, माना जाएगा 50,000 प्लस के डॉलर, $51,000 माना जाएगा। 32,000 में $51,000 आज के रूप में बन रहे हैं, और आप बन जाते हैं V1। अब V1 से V2 का सफर ऑटोमेटिकली आपका पूरा होगा, क्योंकि आपने वैसे ही 360 दिन में डाले हैं। तो वो ही लोग आपको V2 भी बना देंगे 6 महीने के अंदर उनका फंड। तो लगभग 3 गुना हो जाता है। अगर वो लगातार 6 महीने भी रखा उन लोगों ने फंड, तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 50 या $1.5 लाख, और आप बन जाएंगे V2। यानी कि आप सोचिए कि कितने आसानी से आप V1 और V2 के सफर को पार कर रहे हैं। दूसरी बात रही कि LGNS के रेट, तो पहली चीज तो आप रेट की बात किसी से मत करिए। मैं कहता हूं जिंदगी भर भी यही रेट चले तो भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। रेट जो है वो हमारा जाएगा ANV क्वाइन के माध्यम से। ANV क्वाइन जो हमारा ब्लॉकचेन का जो क्वाइन आएगा, उसी ब्लॉकचेन के क्वाइन से लोगों को एक क्वाइन की जरूरत पड़ेगी। आपको एक कैलकुलेशन देता हूं। एक कैलकुलेशन क्या है, आज एक क्वाइन की वैल्यू क्या है? एक क्वाइन की वैल्यू एक LGNS है। जाहिर सी बात है कि 1.40 से आप एक LGNS खरीदते हैं तो आपको इतने डॉलर लगेंगे, और इसको बर्न करेंगे तो आपको एक क्वाइन मिलेगा। अब एग्जाम्पल समझिए कि हमारा क्वाइन, मान के चलिए जैसे GLGNS $50 से हुआ, मैं मानता हूं ये $100 से स्टार्ट हुआ। $100 से स्टार्ट हुआ, तो $100 से आपको इसको खरीदी करना है, तो डिवाइडेड बाई 1.4, आपको 71 क्वाइन लगेंगे। 71 क्वाइन, तब जाके आपको एक अनुबी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखिएगा। इसके रेट ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको 71 क्वाइन लगेंगे, और 71 क्वाइन लगाने खरीदने के लिए आपको 100 LGNS बर्न करने पड़ेंगे। सॉरी, 71 LGNS ही बर्न करने पड़ेंगे। किसी को अगर एक ANV का क्वाइन लेना है, और जैसे ही इसका रेट 100 से लेके 1,000 तक पहुंचा, और ये एग्जांपल हम GLGNS में देख चुके हैं, और एक बार आप देख भी सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर करता हूँ, चालू करता हूँ, तो GLGNS $50 से स्टार्ट हुआ था। टाइम, समय सब कुछ दिखाता है, और GLGNS ने साबित भी किया कि हमारी संख्या 2,10,000 है, और बिटकॉइन के रेट को हम क्रॉस करेंगे, और उसने किया। तो मैं करता हूँ LGNS। यहाँ पर अगर हम चलते हैं LGNS पे, तो आप देख रहे हैं पॉलीगोन का रेट यहाँ पर शो करता है 1.4186। अभी अपडेट नहीं हुआ है, नहीं तो 40 अपन सिस्टम दे रहा है, और ये 2390 ये GLGNS का रेट है। और अब हम बात करते हैं GLGNS, सॉरी वो अनुबिस का है, ये GLGNS। अब इसका रेट कितना चल रहा है इस समय? अगर हम इसके करंट रेट देखें तो
104.43 मतलब इतने हजार, इसको बोल सकते हैं आप तकरीबन, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, लगभग 104 और क्या था 23, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ओके, ये है 4343, लगभग 1,04,000 कितना हो रहा है सर, थोड़ा कैलकुलेशन करके बताइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। $1,40,000 का है। चलिए इसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यही हमें और ये दिखा देगा GLGNS। ये इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर उसका रेट शो हो जाएगा, ये देखिएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, $1,04,430 का, $1,04,430 का एक GLGNS है आज की तारीख में। और इसका मार्केट कैप भी दिखता है, 21.91 बिलियन का मार्केट कैप है, और लिक्विडिटी दिखती है 37 की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सप्लाई वगैरह हर एक चीज इसमें शो करती है। तो अब हमारे बात करते हैं ANV क्वाइन का। तो ANV क्वाइन में दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अलग अलग ब्लॉकचेन, अलग अलग एक्सचेंज और वर्ल्ड वाइड। तो ये हमारा जब GLGNS आएगा तो हर एक व्यक्ति को LGNS को बर्न करना पड़ेगा। अब सोचिए कि एक क्वाइन लेने के लिए, मैंने एक एग्जांपल 71 एक क्वाइन, तो लोग बड़े बड़े जब दिग्गज लोग आते हैं ना, तो किसी को अगर 1,000 क्वाइन चाहिए, 1,000 क्वाइन चाहिए, तो उसको 71 यानी कि 71,000 एक क्वाइन लगेंगे। 1,000 से ट्रेडिंग करेगा तो 71,000 एक क्वाइन लगेंगे, और एक व्यक्ति 71,000 LGNS बर्न करेगा तभी उसे 71,000 एक क्वाइन मिलेंगे। सोचिए एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया के लोग जब आएंगे, तो इस बार पूरा यूनिक सिस्टम है। सिस्टम एक ही बात कहता है कि हम इस बार डॉलर से, डाई से, बिटकॉइन से, इनसे एक कॉइन को खरीदने, हमारे ANV कॉइन को खरीदने की परमिशन नहीं देंगे। हम परमिशन देंगे वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन में एक कॉइन से, क्योंकि अब एक कॉइन ही हमारा अस्तित्व है और उसका बैकअप LGNS है, LGNS का बैकअप $1 से है, याद रखिएगा। और ये एक $1 से नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जितना आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपए के बराबर गोल्ड रखा है रिजर्व बैंक में। इस 10 रुपए को आप दिल्ली में जाके खर्च करेंगे तो 10 रुपए का सामान मिलेगा। अगर किसी से 10 रुपए से एक्सचेंज करेंगे 10 रुपए को, तो 10 के बदले में सामने वाला नो नहीं देगा, 10 के बदले में 10 ही देगा आपको। आप एक 10 का सिक्का दीजिए और 10 का कागज का नोट लीजिए, तो दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि सेम वैल्यू इसलिए कि उसके बैकअप में गोल्ड रखा हुआ है। ऐसे ही हमारे एक LGNS के बैकअप में $1 रखा हुआ है, और वो जो डॉलर की वैल्यू है वो अमेरिका की वैल्यू है, और अमेरिका पूरे वर्ल्ड से चलता है। अगर अमेरिका का डॉलर खत्म होगा तो ही आपका LGNS खत्म हो सकता है, और अमेरिका का अगर डॉलर खत्म हुआ तो अमेरिका खत्म होगा, अमेरिका से पूरा वर्ल्ड खत्म होगा, तो हमारा LGNS उस कंडीशन में खत्म हो सकता है, यानी कि कभी भी खत्म होने के चांसेस नहीं है, याद रखिए। लेकिन अब जब बात कर रहे हैं तो कितने ऐसे लोग हैं जो इतना LGNS बर्न करेंगे दोस्तों, हर एक बंदा आएगा और उस कंडीशन में रेट बढ़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए ANV क्वाइन आने, और आज के रेट वाले लोगों को तो इससे कोई परेशानी है नहीं। तो आप लोग यहाँ पर इस सिस्टम के माध्यम से अपने आप को बढ़ा सकते हैं। V1 बनने का फार्मूला आप लोगों के हाथ में है। जहां लोगों के दिमाग में 50-50, 55-55 लाख बैठे हुए हैं, उसको आसान कर दिया है आज अनुबीस की ब्लॉकचेन ने आके। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको बताते हैं कि आप लोगों को काम इस समय करना चाहिए जिस समय लोग भाग रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन जो है, जो लिक्विडिटी है, वो सब कुछ हमारी एज इट इज है। यहाँ पर आप होम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे इस समय पे तो ट्रेजरी का फंड दिखाता है 1.7 सॉरी 175.81 मिलियन।
दोस्तों ये जो लिक्विडिटी है ना, एक लिक्विडिटी आप यहाँ देखते हैं, मार्केट कैप आप देखते हैं 5.89 बिलियन का मार्केट कैप है हमारे पास। मिलियन और बिलियन में हमारी कहानी होती है। ये जो आप बार बार यहाँ पर डेक्स स्कैनर के ऊपर जाते हैं और डेक्स स्कैनर के ऊपर जो आप इस समय करंट में जो लिक्विडिटी देखते हैं कि लोग बोलते हैं सर 163.9 मिलियन, लगभग 164 मिलियन की लिक्विडिटी रह गई। अरे यार 3 महीने पीछे जाइए, 200 मिलियन की थी, घटा कितना लिक्विडिटी, कितना सेलिंग हुआ, कितना रेट कम हुआ, क्या ये लिक्विडिटी जीरो हुई? क्या मिलियंस में है। बाकी अगर किसी और करेंसी को अगर हम चेक करें तो किस, ये भी तो सब चल ही रही है ना, एटलीस्ट ये सब काम कर ही रहे हैं ना, उसके बाद उनकी लिक्विडिटी होती कितनी है? ये देखिए 573,000, ये के लगे हैं, तो यहाँ एम लगा हुआ है, लेग भी नहीं लगा, एम लगा हुआ है। मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर होते हैं और 163 मिलियन है। ये हजार, यहाँ हजार लगी है, यहाँ मिलियन लगी है, लेकिन 1.1 मिलियन। ये देखिए ये सब करेंसीज का बेकअप है, ये 38, ये सब, और इन पे भी ट्रेडिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये आप वैसे ही देख रहे हैं। अगर आप इसको भी चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन पे भी बाई सेल, भले घंटे भर में हो 2 घंटे में हो। ये मैंने जनरली एक रेंडमली क्वाइन उठा लिया, तो इस पे भी तो देखिए आप, ये सेलिंग हो रही है ना, इस पे भी ये सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है ना। ये भी तो एक रेंडमली क्वाइन है, मैंने यूएसडी क्वाइन निकाल लिया मैंने, ये देखिए आप, ये भी बाइंग हो रही है। ये लगा रहे हैं लोग, $426 लगा दिए किसी ने 0.999 डॉलर के रेट में। तो ये सारे रेंडमली, अब इसकी लिक्विडिटी पे जाए तो $38,000 मात्र, उसके बाद भी लोग काम कर रहे हैं हजार में। यहाँ मिलियन की तो कहानी नहीं चलती है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारे क्वाइन मिलियंस में, आप इस लिक्विडिटी को पूरी दुनिया चाहे तो खत्म नहीं कर सकती, इतनी लिक्विडिटी है आज भी फिलहाल के रूप में पूरी दुनिया। और यहाँ कम क्यों हुई? लोग कहते हैं कि यहाँ तो 400 मिलियन तक पहुंच गई थी, 500 मिलियन तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों यहाँ की लिक्विडिटी उठ के अनुबिस पे भी तो शिफ्ट हुई। अभी हमारे पास ट्रेजरी में फंड रखा है। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस चीज को आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए, कि हमारे पास ट्रेजरी के अंदर फंड होता है, उसका 40% फंड, 40% फंड, वो तो लिक्विडिटी अनुबिस की है, पॉलीगॉन की है, दोनों की अलग अलग है। लेकिन हमारे पास एक ट्रेजरी भी तो है, जिसका तो फंड का उपयोग ही नहीं किया गया, और ये हर 30 सेकंड में हमारे टॉप 10 कॉइन परचेस करता है। मजबूत क्यों है सिस्टम? हम आपसे क्यों इस चीज के बारे में बता रहे हैं, मजबूत क्यों है? आप यहाँ पर जब आएंगे तो डाटास के रूप में देखेंगे कि हमारे पास WBC कॉइन भी है, वेल्थ कॉइन भी है, डाई भी एक्स्ट्रा में है, USDT, BNB। अब BNB की बात करो, बड़ा कॉइन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3,814 BNB सिस्टम ने खरीद के रहे, और यार 30 सेकंड में कुछ ना कुछ खरीदता है। इथेरियम की बात करें तो 1547 इथेरियम सिस्टम के पास बैकअप में रखे। अब वो ट्रेज उधर से खत्म हो तो इधर से फंड की जरूरत पड़े लेने की। अभी 2 साल 4 महीने और 29 दिन में तो आज तक जरूरत पड़ी नहीं इनको। अब देखिए बिटकॉइन की संख्या देखिए, 419 बिटकॉइन। एक बिटकॉइन है कितने का आज भी? लगभग $65,000। रुपए में बात करें तो 60-65 लाख ही हो गए बिटकॉइन की कीमत। लेकिन 419 बिटकॉइन, ये देखिए 30 सेकंड में फिर अपडेट हुआ। ये बार बार अपडेट होता है, याद रखिए, हर 30 सेकंड में अपडेट होता है, यानी कि कुछ ना कुछ खरीदी करता, भले वो $1 की खरीदी करे, किसी ने कहीं पे कोई ना कोई संख्या बढ़ गई होगी। अब 419 बिटकॉइन सिस्टम के पास तो रखे हैं, बाकी की सारी करेंसीज तो है ही, लेकिन बिटकॉइन, अब बिटकॉइन का आपको मैं फ्यूचर बताता हूं कि हर हर 4 साल में हाल्विंग होती है। जैसे पिछले साल 24 में हाल्विंग हुई थी, 24-25 में रेट बढ़े, जैसे 20 में हाल्विंग हुई थी, 20-21 में रेट बढ़े, 16 में हाल्विंग हुई थी तो 16-17 में रेट बढ़े थे, 12 में हाल्विंग हुई तो 12-13 में रेट बढ़े थे। अब 28-29 में हाल्विंग होगी तो 28-29 में रेट बढ़ता है, और ये अपने आप को 4 गुना लेके जाता है, याद रखिएगा। पिछले, अभी तक इसका हाईएस्ट था $1,25,000। अब की बार ये सिस्टम जब हाल्विंग करेगा तो $3 लाख से 3 लाख से 4 लाख 5 लाख, और ये कब? 28-29 की बात कर रहा हूँ। और तब तक हमारे पास बिटकॉइन की संख्या कितनी होगी सोच के देखिए। 419 बिटकॉइन ही सिस्टम को पाल देंगे, लेकिन उस समय तक ये लगातार खरीदी, ये देखिए 2 बरस खरीदी हुई, और 419 बिटकॉइन हो सकता है कि ये 4,000 या 40,000 बिटकॉइन हो जाए। चलो बड़ी बात नहीं करते, 4,000 बिटकॉइन हो गए, 4,000 बिटकॉइन और 3 लाख का एक बिटकॉइन। अब कितना बड़ा फंड सिर्फ ट्रेजरी में सिर्फ बिटकॉइन के रूप में पड़ा रहेगा, जबकि 10 करेंसीज है। और ये आप लोग देख लेना, 28-29 तक हम लोग हैं एलजीएनएस में, आप लोगों को दिखेगा, लेकिन बिटकॉइन का रेट
$3 लाख को क्रॉस कर जाएगा। और ये एक संभावना है, क्योंकि मैं 2016 से बिटकॉइन में काम कर रहा हूं, तो 2016 से 18 में जो प्रिडिक्शन दिए, 18 से 22 में जो दिए वो सक्सेस हुए। 18 से 21 के बाद तो योगेश पाराशर जी मेरे साथ में हैं, वो जानते हैं कि 2021 में मैंने मंच पे खड़े होकर बिटकॉइन के वॉल्यूम के बारे में बताया था कि 24 और 25 में बिटकॉइन हमारा 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि $1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। और योगेश पाराशर जी इस बात को बखूबी जानते हैं, और वो हुआ। तो अभी तो मैं सिर्फ $3 लाख के 3 लाख से $5 लाख की बात कर रहा हूं। और ये बिटकॉइन के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव होइए, मैं बता रहा हूं कि हमारे पास बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है, सोलाना भी है, बीएनबी भी है, वर्ल्ड के टॉप करेंसीज है। ये सब बैकअप के रूप में रखे हैं, इनको तो हाथ ही नहीं लगाना पड़ता। आप लोग तो खाली एक एक फिगर देखते हो मात्र, ये इसी को खत्म नहीं कर पाएंगे, अनुबीस के फिगर को खत्म नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास ट्रेजरी रखा हुआ है, उसके बाद सिस्टम ने कितने बैकअप और लगा लिए हैं। और आप तो हर बार जब टरबाइन करते हैं तो 5% ऊपर देते हैं, वो भी तो बैकअप ही है। अब सिस्टम ने चालू कर दिया है क्रॉस चेन सिस्टम, आप लोगों ने देखा होगा हमारे इसमें कि क्रॉस चेन भी चलता है। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जब आप क्रॉस चेन करते हैं वो उसके ऊपर, तो आप जब क्रॉस चेन करते हैं तो क्रॉस चेन के ऊपर भी जो कटता है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्रॉस चेन है, क्रॉस चेन एक्सचेंज। इसको मैं जब क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे भी आपको गेल ब्रिज दिखता है। इस गेल ब्रिज में आप जब सेटिंग करते हैं कि आपको क्या चेंज करना है, आपके पास इथेरियम के डॉलर है, इथेरियम है, अनुबीस है, पॉलीगॉन है, बीएनबी है, ट्रोन है, दिख रहा है ना। आजकल ट्रोन के बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बीएनबी का तो लेता ही, बीएनबी के यूएसडीटी, मैंने ये बीएनबी के यूएसडीटी कर लिया। काज में बदलना है हमें, अब हमारा सिस्टम तो पॉलीगॉन का है तो हम पॉलीगॉन का ही बदल लेते हैं। पॉलीगॉन का क्या बदलना है, डॉलर या डाई, डाई बदल लेते हैं। अब ये देखिएगा, मैंने ट्रोन से पॉलीगॉन के कितने डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 100। 1 मिनट, इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर ले पहले, यूएसडीटी ये। अब मैंने यहाँ पे ट्रोन के यूएसडीटी लाया और यहाँ पे 100 इसमें डाला। अब 100 डालने के बाद यहाँ पर जो स्लिपेज लग रहा है वो 3% लग रहा है। ये 3% किसको जाएगा, ये 3% जाएगा सिस्टम को, यानी कि ये भी तो एक लिक्विडिटी बन रही है अपने आप में। बीएनबी पे चले गए, बीएनबी के यूएसडीटी पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे पॉलीगॉन का यूएसडीटी, पॉलीगॉन सिलेक्ट करके पॉलीगॉन का यूएसडीटी कर दिया, 100 यहाँ पर हमने डाल दिए। यहाँ पे वो फिगर मांग लेता है आपसे, मिनिमम आपके पास कम से कम 10 से 500, 5,000, 50,000 कितना भी ले, 10 के ऊपर आपको लेना होता है। तो 10 के ऊपर मैंने 100 ही डाला। अब यहाँ पे जब हम चार्जेस डाल देते हैं, हम लोगों को ऊपर परसेंटेज भी देखने को मिलता है। तो जो स्लिपेज चार्जेस होता है अलग अलग जगह पे, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए स्लिपेज चार्जेस, ये 3% ये सिस्टम को मजबूती देता है। दोस्तों दिखाने के लिए बहुत कुछ है, अब आपको काम करना है और V1 बनना नहीं बनाना है, याद रखिएगा। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज काफी सारे पार्टिसिपेंट हैं। बिल्कुल मैंने अपनी कोशिश की कि आप लोगों को बेटर से बेटर यहाँ पर आपको बता सकूं। कितने अभी पार्टिसिपेंट है, 691 लोग। आई थिंक ये 691 लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, 690 लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनको तो अपने आप में प्रण ले लेना है कि मुझे तो V1 बनना है और V1 बनाना है। जो बन चुके हैं वो अपनी टीम को बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को बनना ही नहीं बनाना है। हर एक व्यक्ति को एक ही ड्रीम दिखाना है यार। और अगर एक बार आपने V1 बन लिया, 3 लाख 5 लाख रुपए महीना, लाइफ टाइम ताउम्र पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। तो सोचिए, लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट काय के लिए, जॉब के लिए, आरक्षण के लिए, इन सब चीजों से तो बाहर निकल जाओगे। एटलीस्ट आपके बच्चे तो सुखी रहेंगे, वो प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो एलजीनियर बहुत कुछ दे रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, एजुकेशन के नाम पे हो रहा है, आरक्षण के नाम पे हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब के नाम पे हो रहा है, बिजनेस के नाम पे हो रहा है, दुनिया भर के प्रोटेस्ट जगह जगह चल रहे हैं। और इवन दुनिया की क्या बात करूं, मेरा बच्चे खुद ही बोल रहा था, पापा मुझे प्रोटेस्ट में जाना है। मैंने कि यहीं चले जा, भोपाल में ही हो रहा है, कि नहीं मुझे दिल्ली ही जाना है। मैंने कि वहां लट पड़ते हैं, उन्होंने कहा वो मैं थोड़ी आके बताऊंगा आप लोगों को, वहां माहौल भी तो मिलता है, हमें प्रोटेस्ट करना है। तो बच्चों को, मेरे बच्चों को मैं क्या देने वाला हूँ, एलजीएनएस। अभी उसे एलजीएनएस की वैल्यू नहीं मालूम, अभी वो 10th क्लास में है, अभी उसको वैल्यू नहीं मालूम। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि मैं V2 हूं, तो V2 की वैल्यू क्या है, और मेरे बच्चे को जब ये मिलेगा तो उसको वैल्यू क्या समझ में आएगी। चलिए दोस्तों,
बहुत कुछ कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि इस रेट पे आपको काम करना कितना जरूरी है और सिस्टम हम हमेशा के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच योगेश पारा सर, थैंक यू वेरी मच अशोक जोशी सर, जो आप लोग साथ में बने रहे हैं। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे रहे हैं, और हमारे गुरु भी यहाँ पर हैं, ईश्वर शर्मा जी, जो मुझे जबरदस्ती लेके आए थे। ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहा था इनके खिलाफ भी मैं, लेकिन फिर भी लेके आए। तो जी थैंक जी यू। जितेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जबरदस्त तरीके से आज आपका प्लान प्रेजेंटेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लान क्या, आपने पूरा टेक्निकल बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया और बहुत सी बात आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी सर। हाँ सोहन भाई, बिल्कुल स्वागत है सर आपका। सर नमस्ते सर। जितेन सर जी, से पूछा ना, अपना यूआरएल कब तक का रिन्यूअल है? यूआरएल कब तक का रिन्यूअल है, वो तो कर लिया ना सर अभी कब अपना। तक का होगा अभी जो किया था हमने, हमारा इसका जूम का सर? इसका प्रोजेक्ट कब है? प्रोजेक्ट का यूआरएल का, प्रोजेक्ट के यूआरएल का तो देखिए फिर हम। सर, प्रोजेक्ट का जो यूआरएल होता है, जस्ट लाइक अपनी भाषा में उसे वेबसाइट कहते हैं, और यूआरएल होता है, यूआरएल का रिन्यूअल जो होता है ऑटो मोड पे सिस्टम क्या करता है, ये सर्वर से चलता है। और सर्वर जो होता है उसका 1 साल, 3 साल, 5 साल के पैकेजेस होते हैं, और वो ऑटो मोड पे हो जाते हैं। तो हमें यूआरएल करने की आवश्यकता नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक कर रहा है। एक यूआरएल नहीं, हमारे पास चार चार यूआरएल है, और चारों के चारों करंट में रनिंग है। आपको यूआरएल बंद होता कब दिखा? तो हमें यूआरएल की चिंता करने की क्या आवश्यकता। और हमारा एलजीएनएस तो वैसे भी ब्लॉकचेन के ऊपर रखा हुआ है, और यस सर। यूआरएल हमारे करंट में काम कर रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। और वैसे भी हमारी जो साइट है वो डार्क वेब की है। डार्क वेब पे जो बनी हुई है वो, उस पे इस तरह का कुछ भविष्य में कुछ घटित होना कि यूआरएल नॉट रिन्यूअल की वजह से वो बंद हो जाएगा, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। तो चलिए जितेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा 10 मिनट आपका ज़्यादा समय हुआ, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। तो आज हम केवल 5 मिनट 2 मिनट की चर्चा करना चाहेंगे ईश्वर शर्मा जी से। ईश्वर भाई हमारे बहुत जानदार शानदार साथी हैं और मंदसौर से हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ओरिजिन के साथ बने हुए हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो एनएफटी के साथ भी कैसे हम जल्दी V1 बन सकते हैं, वो ईश्वर शर्मा सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो ईश्वर भाई, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आज सर जितेंद्र जी, जी ने पूरा जोश और उत्साह भर दिया पूरी टीम के अंदर। हालांकि सर जी ओरिजिन की पूरी। एक्सक्यूज मी सर जी। हेलो। हाँ, एक्सक्यूज मी सर जी। हेलो। यस सर, बोलिए 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 सोहन ईश्वर भाई। जी, क्या हो गया? नहीं, उनका माइक चालू था, बंद कर ठीक है, दिया। ठीक है। वैसे जितेंद्र भाई ने बहुत शानदार पूरे जोश और उत्साह का संचार पूरी टीम के अंदर कर दिया है। हालांकि ओरिजिन की टीम पूरी जोश में वैसे 24/7 रहती है। और साथियों, वाकई में जितेंद्र जी ने जो बताया कि हमारे प्रोजेक्ट का भविष्य कितना सुरक्षित है, इसके जो क्रिएटर है ये सिर्फ दिखावे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लंबा कैसे रन करें, कैसे ये जैसा हमारे मुहिम बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, तो किस प्रकार से ये हमेशा बना रहेगा, उसकी तैयारियां पहले से ही चल चुकी थी और उसी के अनुसार ही ये काम कर रहा है। ये मार्केट में क्या हवा चल रही है उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है। जैसा अभी जितन भाई ने बताया कि बहुत सारी लाखों कंपनियां ऐसी है जो 24 घंटे नामे जपती है, चाहे वो अच्छे में जपे या बुरे में जपे। अच्छे में तो जपते नहीं है क्योंकि उनका काम चल नहीं रहा है। वो बुरे में इसलिए जपते हैं कि बुराई करके वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहावत है कि जिंदगी में कोई किसी को छोटा करके कभी बड़ा नहीं बन पाया है। अगर अपने को बड़ा बनना है तो अपनी लाइन बड़ा करनी पड़ेगी, और ओरिजिन उसी में लगा हुआ है। मेरी टीम को, पूरी ओरिजिन टीम को बहुत बहुत बधाई है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। मेरी टीम पूरी 24/7 इस चीज में लगी हुई है कि इस समय कैसे ज्यादा से ज्यादा एचओआर निकले, कैसे ज्यादा से ज्यादा एनएफटी होल्डर निकले। जब से एनएफटी चालू हुआ, एनएफटी का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला मैं था कि भैया V1 V2 V3 को एनएफटी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। V1 कैसे एनएफटी करेगा, क्या करेगा। और जब इस एनएफटी के बेनिफिट पता चले, तो साथियों जब से एनएफटी चालू हुआ
10-15 दिन तक तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि एनएफटी क्या है, लेकिन जब समझ में आया तो उस दिन से उसी मुहिम में लगा हुआ हूं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरी टीम में एनएफटी होल्डर हो, क्योंकि एनएफटी होल्डर इस प्रोजेक्ट की मील का पत्थर साबित होने वाला है और एनएफटी होल्डर को वो बेनिफिट होने वाले हैं जिसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की होगी। जब से चालू हुआ, जब से समझ में आया, आज टिल डेट 65 एनएफटीज मेरी टीम में हो चुकी है। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि 1 या 2 एनएफटी टीम में नहीं करवाते हैं। तो अगर आपको फास्ट V1 बनना है तो एक ही फॉर्मूला है, 3 लाइन में 2-2 एनएफटी कर दीजिए और आराम से चैन की नींद, सुकून की नींद सोइए। आपको कोई डिगाने वाला, कोई हटाने वाला बनेगा नहीं। आप V1 से कब V2, V3, V4 ये सिस्टम ही आपको ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें छोटा व्यापार नहीं लाना है, छोटे वॉलेट्स भी बनाने हैं, धीरे धीरे करके जिसको जैसा समझ में आए। लेकिन अगर किसी को क्लियर है, समझ में आ जाए, तो उसको प्रेरित करे कि एनएफटी के बेनिफिट्स क्या है। हमारा जो गेमिंग जोन चालू होने वाला है, मतलब ये समझिए कि आने वाले समय में हर जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में एलजीएनएस होगा। कारण बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्दी उसके भी ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम गेमिंग इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, उसका भी बहुत जल्दी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो एनएफटी होल्डर को बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। मतलब ये समझिए कि इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट के एक तरीके से वो पार्टनर हो गए हैं। जितने भी एयर ड्रॉप्स आएंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो सारे बेनिफिट्स एनएफटी होल्डर को मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी रैंक अचीवर है या जो आपके अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रेरित करें कि एक एक एनएफटी अपने पास होना ही चाहिए अगर इस प्रोजेक्ट में लंबे समय आपको बड़ा पैसा बनाना है तो। क्योंकि ओरिजिन छोटा पैसा नहीं देता, ये 1 के 2, 1 के 3, 1 के 4 नहीं करता है। ये आने वाले समय में 1 के 100, 1 के 200 आपको देने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, टिके रहिए, पड़े मत रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर भाई आपका। और साथियों, एनएफटी की महत्वता बहुत ज़रूरी है और सभी साथियों के पास वो होना चाहिए। और उस एनएफटी के रहने से आपका बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और एनएफटी के महत्व को समझना, सीखना भी ज़रूरी है। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया और बहुत शानदार रहा। तो चलिए इजाज़त लेते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। तो करते हैं मुलाकात कल सुबह 9 बजे घर की जूम में फिर एक नए साथी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।